Hello, good morning, students. Students, let's start reading the last two passages of this chapter. Okay, so get yourself ready to pace up with me while reading this the passage number first at this page number 36. This concept is expressed as sensui. This concept is expressed as sensui. Okay, what kind of concept is referred to here in this extract? The concept which has been described by the author in the last passage at the back at the page number 35, at the last page. What is the concept here? This concept is directly connected to a person's mental feelings, mental perceptions. Okay, this concept is expressed as sensui, literally mountain water. The word sensui literally stands for here mountain water, which used together represent the word landscape. Okay, when mountain and water, when both the word mountain and water are put together, when both the objects of nature are used together, are put together, so these two form form the site of a landscape. It is the mountain. Okay, it is in vertical form, and the water runs through the foothill of the mountain, so it also makes the site of a landscape. So when these two are put together, are joined together, so these two work as a beautiful site of the landscape. So literally it is known as sensui. Okay, the term sensui means mountain water, which used together represent the word landscape. Okay, more than two elements of an image. For example, let's take an image. The word image stands for the sight, picture. We take the picture of any nature-based object, natural object. Okay, so more than two elements of an image. When we take more than two images of the nature, when we take more than two images of nature, not the nature, these represent two complementary poles. So these also represent two different poles, complementary poles, reflecting the Taoist view of the universe. So this is the theory of Taoist. Wu Daoji's theory says that Wu Daoji's theory says or experience that when a painter puts any two complementary poles of the natural objects, so they start working as a beautiful landscape. I think you have not understood. More than two elements of an image का मतलब ये होता है किसी भी एक तस्वीर, दृश्य, आकृति, किसी भी एक प्राकृतिक दृश्य, किसी भी एक प्राकृतिक चीज जो होती है, प्रकृति की जो अनोखी भेंट जो है, उन प्रकृति की अनोखी भेंटों में से किसी भी एक दृश्य के कोई दो पहलू, दो तत्व, उसके दो तत्व से ज़्यादा कोई तत्व होते हैं, तो वे क्या रिप्रेजेंट करते हैं? दे रिप्रेजेंट टू कॉम्प्लीमेंट्री पोल्स. तो वे दो अलग अलग इस प्रकार के अलग अलग विभाजित भागों में दो ध्रुवों का जिक्र करते हैं. अलग अलग दो ध्रुव जो होते हैं, दो क्षेत्र जो होते हैं, दो जो उनके अपने पार्ट्स होते हैं, उनको बताते हैं. रिफ्लेक्टिंग द दाओइस्ट व्यू ऑफ द यूनिवर्स. और वू दाओजी का जो सिद्धांत है, वो वू दाओजी का सिद्धांत यही कहता है कि जब भी कभी कोई चित्रकार
किसी एक लैंडस्केप का कोई चित्र लेता है तो उसको किन्हीं दो या दो से ज़्यादा नेचर ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं, ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेचर, उनको अपने उस चित्रकारिता में दिखाना होता है, तब जाकर के वो पूरा एक लैंडस्केप का दृश्य बन पाता है। द माउंटेन इज यांग, उसने कहा कि माउंटेन जो है, देखो मैं कहीं दिक्कत होगी तो फिर दोबारा पढ़ा दूंगा, इसमें सिर्फ ये बताया गया है कि दिस कंसेप्ट इज एक्सप्रेस्ड एज सेंसुई, इस धारणा को सेंसुई के रूप में दर्शाया गया है, अभिव्यक्त किया गया है। सेंसुई को उन्होंने कहा है, जिसका साहित्यिक दृष्टि से जो उसका एक अर्थ निकलता है वो निकाला गया है पर्वत पानी, माउंटेन वाटर, विच यूज टुगेदर रिप्रेजेंट द वर्ड लैंडस्केप। पर्वत को और पानी को दोनों को यदि एक साथ अलग अलग क्षेत्रों से, अलग अलग पार्ट से वो जुड़े हुए हैं, अलग अलग पोल से जुड़े हुए हैं, जब उन अलग अलग पोल्स वाले दोनों नेचर बेस्ड ऑब्जेक्ट्स को एक साथ इकट्ठा रख दिया जाता है तो वो क्या बन जाता है, लैंडस्केप बन जाता है। वो ऐसा कहता है, वो कहता है किसी प्रकार से मोर देन टू एलिमेंट्स ऑफ एन इमेज, किसी भी एक इमेज तो मूर्ति के लिए होता है, इमेज किसी तस्वीर के लिए लगा लीजिए बेटा आप, प्राकृतिक दृश्य के लिए लगा दीजिए आप। द वर्ड इमेज स्टैंड्स फॉर हियर द साइट ऑफ, ब्यूटीफुल साइट ऑफ नेचर। जब आप प्रकृति की किसी सुंदर से दृश्य की बात करते हैं तो प्रकृति के सुंदर से दृश्य की दो से ज़्यादा जो उसके अपने कोई एलिमेंट्स हैं, दो से ज़्यादा उसके अपने कोई पार्ट्स हैं, भाग हैं, तो उन सभी भागों को यदि वे सभी जो भाग हैं वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं, वो अलग अलग ध्रुवों से, अलग अलग क्षेत्रों से वो अपना संबंध रखते हैं। तो वो एक साथ जब रख दिए जाते हैं तो वो दाउस्त के उस यूनिवर्स के सिद्धांत को, सार्वभौमिक सिद्धांत को और वो दर्शाते हैं। वो दाओजी का सिद्धांत यही कहता है कि भाई किसी भी एक लैंडस्केप के अंदर, किसी भी भूदृश्य के अंदर दो से ज़्यादा या दो से ज़्यादा किन्हीं प्राकृतिक दृश्यों का रखना बहुत ज़रूरी होता है, तभी जाकर के वो अपने आप में एक अच्छी चित्रकारिता बना सकते हैं। अब उन्होंने एक्सप्लेन किया कि द माउंटेन इज यांग, माउंटेन जो है वो यांग है, इसको यांग पढ़ेंगे चाइनीज भाषा में, यांग, रीचिंग वर्टिकली टुवर्ड्स हेवन, हेवन स्टैंड्स फॉर स्काई के लिए। ओके, पर्वत यांग है जो कि ऊपर लंबवत रूप में खड़े तरीके से, यूं खड़े रूप में आसमान की तरफ बढ़ रहा होता है, बढ़ता हुआ दिखाई देता है। स्टेबल जो स्थिर है, वार्म जो गर्म है, एंड ड्राई इन द सन, और जो सूर्य के प्रकाश में, सूर्य की धूप में शुष्क है, ओके, सूखा दिखाई देता है। वाइल द वाटर इज यिन, जबकि पानी को उसने क्या किया, यिन है। हॉरिजेंटल है, जो खड़ा नहीं रहता, कभी भी ऐसे खड़े भाग में नहीं भागता, क्षितिज रूप में समतल तरीके से यूं जमीन पर चिपट करके फ्लैटन फॉर्म में पानी आगे बढ़ता है। जो पानी है वो यिन है, जो क्षितिज रूप में दिखाई पड़ता है, एंड रेस्टिंग ऑन द अर्थ, और ऐसा लगता है जैसे पृथ्वी पर वो विश्राम कर रहा हो। फ्लूइड, मॉइस्ट एंड कूल, जो फ्लूइड है, मॉइस्ट है, नरम, गीला है, भीगा हुआ है, लिक्विड के तौर पर है, तरल पदार्थ के रूप में है, एंड कूल और ठंडा है, शीतल है। द इंटरेक्शन, दोनों के बीच में जो रिएक्शन होती है इसको इंटरेक्शन बोला जाता है। द इंटरेक्शन ऑफ यिन, द रिसेप्टिव फेमिनिन एस्पेक्ट ऑफ यूनिवर्सल एनर्जी एंड इट्स काउंटरपार्ट मीन अपोजिट, यांग, एक्टिव एंड मैस्कुलिन। On the one hand, the water is regarded as a feminine, okay, and it is receptive. The word receptive means hospitable, जो आदर सत्कार करने योग्य जो होता है उसको कहते हैं रिसेप्टिव, बेंडी, रिसेप्टिव, ओके, जो झुक करके काम करता है, जो फेमिन एस्पेक्ट ऑफ यूनिवर्स एनर्जी, जो यूनिवर्सल एनर्जी का एक स्त्रीलिंग जो होता है उस भाव को वह जाहिर करता है। द इंट्रैक्शन यिन, द रिसेप्टिव फेमिनिन एस्पेक्ट ऑफ यूनिवर्सल एनर्जी एंड इट्स काउंटरपार्ट यांग, एक्टिव एंड मैस्कुलिन इज ऑफ कोर्स a fundamental notion of Taoism. According to Wu Daoji, according to the principle of Wu Daoji, it is clearly mentioned that here are two kinds of poles, here are two kinds of
elements of the bounties of nature, and the one is here, for instance, the one is here mountain which is masculine, which is in vertical form reaching towards heaven, which is quite stable, warm and dry. But on the other hand, the water which is feminine, receptive, and it is not so active, and it remains totally passive. Okay, so is of course the fundamental notion of Taoism. यही वो दाओइज्म की एक आधारभूत एक धारणा है, और उस आधारभूत धारणा के मुताबिक यहाँ पर 2 बातें बताई गई हैं. व्हाट इज ऑफन ओवरलुक्ड इज एन एसेंशियल थर्ड एलिमेंट. वो कहता है कि जो कुछ भी नज़रअंदाज कर दिया जाता है, जिसको देखा नहीं, ओवरलुक्ड में नेग्लेक्टेड. जब इस प्रकार से कभी कोई व्यक्ति इन दोनों दृश्यों को देखता है, एक तरफ पर्वत की तरफ नज़र डाल के देख रहा है, एक पर्वत के नीचे से पानी बह रहा होता है उसकी तरफ देख रहा होता है, तो दोनों की तरफ वो देख रहा है, तो कहता है कि वो एक चीज़ को छोड़ जाता है व्यूवर. While looking at the side of the mountain and at the sight of the flowing water, the viewer misses one main thing. What is the main thing? What is often overlooked is an essential third element. वो कहता है कि वो तीसरा जो कोई मुख्य तत्व है वो व्यक्ति छोड़ देता है देखने वाला. The middle void means emptiness, hollowness, where their interaction takes place. जहाँ पर उन दोनों का हस्तक्षेप होता है, जहाँ पर वो दोनों आपस में स्पर्श करते हैं. माउंटेन ये है इन दिस फॉर्म, पानी नीचे से बह रहा है, जहाँ माउंटेन टिका हुआ है उसके पास से पानी बह रहा है, तो माउंटेन का जो निचला हिस्सा है, ठीक है, और पानी का जो ऊपरी हिस्सा है, यानी कि सतह जो ऊपर की पानी की, उन दोनों के बीच में कहीं गैप है, जरा सा, थोड़ा सा, ऐसा मानता है दाओइज्म का सिद्धांत. ऐसा कहता है कि इन दोनों के बीच में हल्का सा गैप है जहाँ पर उनकी इंटरेक्शन होती है. दिस कैन बी कंपेयर्ड विद द योगिक प्रैक्टिस ऑफ प्राणायाम. वो कहता है कि यदि हम नहीं समझ पाते तो हम इस पद्धति को, हम जो प्राणायाम की जो पद्धति होती है, प्राणायाम जो हम करते हैं, उन प्राणायामों की पद्धति में हम इसकी तुलना कर सकते हैं. दिस कैन बी कंपेयर्ड विद द योगिक प्रैक्टिस ऑफ प्राणायाम. इस सिद्धांत की तुलना प्राणायाम की, योगा के जो प्राणायाम करने का, जो अभ्यास करने का जो तरीका होता है, प्राणायाम किस प्रकार से किया जाता है, उस प्राणायाम करने के योगासन के तरीके से भी इसकी तुलना की जा सकती है. ब्रीद इन, पहले प्राणायाम करते समय श्वास खींचा जाता है, लिया जाता है. रिटेन, फिर श्वास को रोका जाता है. ब्रीद आउट, फिर श्वास को बाहर निकाला जाता है. फर्स्ट ऑफ ऑल, ए पर्सन हु टेक्स प्राणायाम ब्रीद्स इन, बहुत ज़्यादा श्वास खींचता है, लंबा श्वास खींचता है. देन ही होल्ड द ब्रीद, रिटेन मीन होल्ड करना, फिर उसको रोकता है बीच में एट द मिडल स्टेज, एंड देन ही ब्रीथ्स आउट, फिर उसको श्वास को बाहर छोड़ता है. द सस्पेंशन ऑफ ब्रेथ इज द वॉइड. जहां पर हम श्वास को रोकते हैं ना बेटा, वो कहता है कि दिस इज द मिडल पोजिशन, दिस इज द मिडल पोजिशन. वॉइड मीन्स यहाँ पर वो हल्का सा एक हॉलोनेस, एम्प्टीनेस, एक अलग से एक एलिमेंट जाहिर होता है. वेयर मेडिटेशन ऑकर्स, जब वहाँ पर ही असली ध्यान अवस्था होती है, वहीं पर उसी जगह पर ध्यान अवस्था का होना निश्चित होता है, वहीं पर ध्यान अवस्था अपना स्थान ग्रहण करती है. यानी प्राणायाम के दौरान में जब हम सांस को रोकते हैं कुछ सेकंडों के लिए, वहीं पर वास्तव में सही मायने में एक ध्यान जो है केंद्रित होता है, ध्यान अवस्था का प्रारंभ होता है, ध्यान अवस्था उसी जगह पर अपना कार्य करती है. द मिडल वॉइड इज एसेंशियल, नथिंग कैन हैपन विदाउट इट. वो कहता है कि बगैर उस मिडल वॉइड के, तो दाऊजी है वो दाऊजी हैज ऑल्सो डिस्क्राइब्ड मैनी सच काइंड्स ऑफ पाथ्स एंड ट्रैक्स इन हिज ब्यूटीफुल पेंटिंग ऑफ द लैंडस्केप विच कैन हार्डली बी सीन बाय ए कॉमन व्यूअर. कभी नहीं देखे जा सकते. वो कहता है जब तक कि कोई व्यक्ति उनके अंदर माथापच्च नहीं करेगा, तब तक उस प्रकार के भूदृश्य के बनाए गए उस चित्र के अंदर और कोई व्यक्ति उनको नहीं ढूंढ पाएगा, नहीं पता लग पाएगा. तो कहता है इसलिए बीच की जो स्थिति है वो बहुत ज़रूरी है, इसके बगैर कुछ भी होना संभव नहीं है. हैंस द इम्पोर्टेंस ऑफ द थर्ड अनपेंटेड स्पेस इन चाइनीज लैंडस्केप. इसीलिए वो कहता है, क्योंकि यही एक वजह है कि जहाँ पर वो सफ़ेद हिस्सा जो होता है,
जहाँ पर वो वाइटनेस जो होती है, वाइट जो ब्लैंक स्पेसेस जो होते हैं उस पेंटिंग के अंदर, वो वास्तव में वो स्पेसेस होते हैं जो उन बाकी की चीज़ों के बीच में अपना एक अलग ही महत्व रखते हैं। अनपेंटेड जो वाइट स्पेसेस होते हैं किसी भी एक चाइनीज पेंटर के पेंटिंग में, वो वास्तव में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं, बहुत ज़्यादा सुंदर तरीके से वो दिखाई पड़ते हैं। दिस इज ऑल्सो वेयर मैन फाइंड्स ए फंडामेंटल रोल। वो कहता है यही एक वजह है कि वे व्यक्ति भी इस प्रकार से इस दुनिया में एक अहम भूमिका, एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इन दैट स्पेस इस बिटवीन हेवन एंड अर्थ, पृथ्वी और आकाश और पाताल जिसको कहते हैं, पृथ्वी लोक और आकाश जो लोक है उसके बीच में, पृथ्वी और आकाश के बीच का जो स्पेस है, उस स्पेस में ही बिकम्स द कंडुइट। द वर्ड कंडुइट स्टैंड्स फॉर बेटा चैनल, मीडियम, मीडिया। दिस द मैन वर्क्स एज ए मीडिया। ओके, ही बिकम्स द कंडुइट ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन बोथ पोल्स ऑफ द यूनिवर्स। तो ब्रह्मांड के इन दोनों पोल्स मीन्स एंड्स, ब्रह्मांड के इन दोनों जो लोक हैं, इन दोनों जो पार्ट्स हैं, इन दोनों पार्ट्स के बीच में यदि सही मायने में बीच का मध्यस्थता का कोई काम करता है तो वो कौन करता है? संदेशवाहक के रूप में यदि कोई काम करता है तो कौन करता है? मनुष्य करता है। तो कहता है दिस इज ऑल्सो वेयर मैन फाइंड्स अ फंडामेंटल रोल। यह धारणा जो है ये वास्तव में मानव के साथ भी जुड़ी हुई है। जो मनुष्य है वो एक बहुत ही आधारभूत, बहुत ही महत्वपूर्ण, बड़ा एक फंडामेंटल, मतलब एक विशेष जिसको बोला जाता है, एक विशेष अधिकार जिसको कहा जाता है, उसके लिए फंडामेंटल राइट जैसे, तो महत्वपूर्ण भूमिका एक व्यक्ति भी अपनी पाता है इस ब्रह्मांड के अंदर। किस रूप में? कि इस पूरे ब्रह्मांड के अंदर देखते हैं जैसे कि पृथ्वी से और आकाश के बीच का जो गैप होता है, स्पेस होता है, उस स्पेस में मैसेंजर का जो काम करता है वो कौन करता है? ही बिकम द कंडुइट ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन बोथ पोल्स ऑफ द यूनिवर्स। इस ब्रह्मांड के दोनों क्षेत्रों में एक जो आपसी कम्युनिकेशन का, आपसी संपर्क साधने का जो एक काम करता है मनुष्य, संपर्क साधने के जो भूमिका, संपर्क साधने के रूप में जो भूमिका निभाता है वो मनुष्य है, जो इस प्रकार से भूमिका निभाता है। हिज प्रेजेंस इज एसेंशियल। कहता है कि इस मनुष्य की उपस्थिति बहुत जरूरी है। इवन इफ इट इज ओनली सजेस्टेड, भले ही चाहे मानो उसकी उपस्थिति को बहुत कम, थोड़ा बहुत ही समझा जाता हो, उसको बहुत ज़्यादा दिखाया नहीं जाता हो, केवल सुझाव प्रस्तावित किया जाता हो कि इस प्रकार से मनुष्य कहता है फार फ्रॉम बीइंग लॉस्ट और ऑप्रेस्ड बाय द लॉफ्टी पीक्स, इवन इफ इट इज ओनली सजेस्टेड। हालांकि कहता है कि केवल मात्र इसको ऐसे सुझाव प्रस्तावित किया जाता है, सुझाव दिया जाता है। फार फ्रॉम बीइंग लॉस्ट और ऑप्रेस्ड बाय द लॉफ्टी पीक्स, इस प्रकार से ऊंची, लॉफ्टी का मतलब क्या होता है? ऊंची, हाई पीक्स, पर्वतों की ऊंची चोटियों के द्वारा मनुष्य की इस प्रेजेंस को या तो ख़त्म कर दिया जाता है या उसको दबा दिया जाता है। ऑप्रेस्ड का मतलब दबाना होता है। ही इज इन फ्रैंकोइस चेंज, he is in Francois Ching's wonderful expression। फ्रैंकोइस चिंग एक एकेडमिशियन हुआ है बेटा ये चाइना का, और इस फ्रैंकोइस चिंग की अद्भुत जो एक अभिव्यक्ति है, अद्भुत जो एक बात है, उस बात में ऐसा कहा गया है द आई ऑफ द लैंडस्केप, कि यह जो बीच की जो व्यवस्था होती है, द मिडल पार्ट ऑफ एनी टू इम्पोर्टेंट पोल्स ऑफ ए नेचुरल ऑब्जेक्ट of the natural objects is the eye of the landscape, works as a fundamental part of the landscape। एक महत्वपूर्ण आधारभूत हिस्से के रूप में काम करता है ये बीच का जो हिस्सा होता है
और वही वास्तव में सही मायने में भूदृश्य की एक आँख होती है, भूदृश्य की एक दृष्टि होती है। असली भूदृश्य जो होता है किसी के द्वारा भूदृश्य का जो चित्र बनाया जाता है किसी पेंटर के द्वारा, और यदि उस चित्र में सब कुछ चित्रित किया हुआ है लेकिन जहाँ पर उसने बीच बीच में जो वाइट ब्लैंक स्पेसेज छोड़े हुए हैं, वाइट स्पेसेज जो छोड़े हुए हैं, उन वाइट अनपेंटेड जो स्पेसेज हैं, उन वाइट अनपेंटेड स्पेसेज का उस चित्र में अहम रोल होता है। और वही वास्तव में उस भूदृश्य की एक तीसरी आँख होती है, अर्थात वही उसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। आई स्टैंड्स फॉर इम्पोर्टेंट पार्ट के लिए। वो कहता है जिस प्रकार से पृथ्वी और आकाश के बीच में एक संबंध स्थापित करने के लिए बीच के उस खाली स्पेस को मेंटेन रखने के लिए, जैसे कि मनुष्य की भूमिका जितनी महत्वपूर्ण होती है, बिल्कुल ठीक वैसे ही किन्हीं दो अलग अलग प्राकृतिक जो दृश्य होते हैं, नेचुरल जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उन प्राकृतिक दृश्यों के किन्हीं दो दृश्यों के अलग अलग दो हिस्सों को जोड़ा जाता है तो उनके बीच में कुछ ऐसा स्पेस रह जाता है, छोड़ दिया जाता है, जिस स्पेस का बहुत बड़ा महत्व होता है, जिस स्पेस को देखने के लिए व्यक्ति को बहुत ज़्यादा मानसिक रूप से स्तर करने की आवश्यकता है। थोड़ा आपको इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ ना। नाउ आई वुड लाइक टू टेल यू हियर समथिंग इन ब्रीफ। अकॉर्डिंग टू द ऑथर, a Chinese painter always makes his painting based on his concepts, his mental perceptions, his understanding, his own knowledge. He never copies the sight of any natural object exactly in the same manner he catches it into its sight. वो उसी तरह से उसको बिल्कुल नहीं बनाता जिस प्रकार से वह उसको देखता है। बट ऑन द अदर हैंड ए यूरोपियन पेंटर ऑलवेज डज सो। ही मेक्स हिज पेंटिंग in the same manner, in the same form which he takes into his view. जो उसके अपने दृष्टिकोण में जो चीज़ आती है, बिल्कुल एग्जैक्टली जो फिगर वो देखता है, चाहे पर्वत का चित्र बनाए, चाहे नदी का चित्र बनाए, वो जैसा देखता है वैसा ही बनाता है। लेकिन जो एशियन पेंटर है, जो ये चाइनीज पेंटर है, वो पेंटर कभी ऐसा नहीं करता है। चाइनीज पेंटर हमेशा अपनी पेंटिंग को अपने अंदाज में बनाता है और यूरोपियन पेंटर हमेशा अपनी पेंटिंग को जो देखता है, जैसा देखता है उसी के मुताबिक बनाता है। सो बेटे, आई वुड लाइक टू राइट सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। ओके, फर्स्ट regarding both kinds of painters and their paintings. Okay, as fair notes for you, and I would like to supply you that the written work, okay, through WhatsApp service, or maybe nowadays we have started one more app. What is the name of this app? Google Classroom app. So you may also get the same thing through Google Classroom app. It depends on time and situation. Bete, now you should read the passage by yourself, revise it, and you will surely get all kinds of things which we have explained here in these 4 lectures very nicely, very clearly, and without any difficulty. Thank you, bete.